तो चलो अब एक एक करके लेते हैं हम, हाउ टू सिलेक्ट अ टॉपिक, और सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक के लिए हमको क्या ध्यान में रखना है। सो व्हेन वी आर सिलेक्टिंग द टॉपिक of our essay, we have to be very careful. We have to see these things. First, what is our familiarity with the topic? हम कितना जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, अवेयर कितने, ठीक है। सपोज यू पिक अ टॉपिक से एडवांस मशीन लर्निंग, आपको लग रहा है कि नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है, टॉपिक ले लेता हूँ, बट आपको फेमिलियरिटी नहीं है उसके बारे में, आप कुछ मैंने सुना भी नहीं है उसके बारे में, कोई अवेयरनेस ही नहीं है। फेमिलियरिटी सिंपली मीन्स योर अवेयरनेस। एंड हाउ कैन यू चेक योर अवेयरनेस अबाउट द टॉपिक? फ्रॉम योर नॉलेज, or encashing your knowledge that you have gained over these years and the knowledge that you have accumulated during the preparation of this examination from the other GS papers, etc. So first thing is familiarity. That's the first criteria for selecting the topic. The second criteria is you should have knowledge about the topic. Familiarity with the topic means that you have heard about it or you have seen it. It's not alien to you. Knowledge means you know about it at depth. So you must have some in-depth understanding. क्योंकि आपको 1000 या 1200 वर्ड्स लिखने हैं of the topic. This is the second thing that you have to keep in mind. The third thing is, what is the propensity or probability of others selecting the topic? ठीक है, प्रोपेंसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इस टॉपिक की जब इवैल्यूएटर के पास ऐसे पेपर जाए. Now you know that approximately, you see it depends from year to year, but approximately 12,000 to 14,000 aspirants go for the civil services main written examination, and all have to appear for the essay paper. So nearly 15,000 copies or 14,000, let's assume that all are writing, nobody is backing out. So many copies will go to the different evaluators, and if the topic that you have selected, most people have selected that, like say for example, I am giving you 3 topics. First topic is an unexamined life is not worth living. The second topic is critical space infrastructure, and the third topic is women empowerment. What do you think? What most people will pick? Women empowerment. समझ में आ गई बात? तो जब सब लोग वही लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा टॉपिक ले लो जो कोई नहीं लिख रहा है और आप भी नहीं लिख पा रहे, ये मत देखना. दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, नॉट द ओनली क्राइटेरिया. द फर्स्ट 2 थिंग्स आर प्रीरिक्विजिट. वंस यू आर डन विथ दिस, सपोज यू हैव फैमिलियरिटी, फिर आप देखो प्रोपेंसिटी और प्रोबेबिलिटी. इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर एस्पिरेंट्स choosing the topic. This is the third criteria. The fourth criteria is you have to check the diversity in the topic. Diversity means how many different aspects or dimensions you can explore. Think of a topic like Internet of Things and compare it with a topic like India of my dreams. समझ में आ रहा है? Which has more dimensions? India of my dreams, because Internet of Things is a very specific topic. It's a very narrow topic. उसमें ज़्यादा diversity नहीं है. आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक टेक्निकल एंगल ला सकते हो, इकोनॉमिक एंगल ला सकते हो, एंटरप्रेन्योरियल एंगल ला सकते हो, फिलोसॉफिकल एंगल जबरदस्ती आपको घुसाना पड़ेगा उसमें, ठीक है. वो भी घुसाओगे तो मार्केट फिलोसफी, टेक्नोलॉजी फिलोसफी, यही होगा, ठीक है. बट इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स में इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी एक चीज हो सकती है. मतलब दूसरा टॉपिक जो है वो पूरे पहले टॉपिक को सब्ज्यूम कर गया, वो एक शार्क की तरह है, आप ऐसे समझ लो.
ठीक है, it's the big fish in the ocean. So you have to always hunt the big fish in life, always. Do you understand that? Then only you will gain that advantage. So diversity means how much is the possibility to explore the dimensions of the topic. And the fifth thing is, let me write it here. Fifth is novelty. Novelty means how many new ideas, how many new arguments, how many new things you can infuse in the essay. मतलब आपकी तरफ से ऐसा क्या नया होगा उसमें जो बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं. सपोज कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत इन डेप्थ रिसर्च कर चुके हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल ट्रैफिक मैनेजमेंट इन अर्बन स्पेसेस, उसके बारे में आपने बहुत डीपली पढ़ा हो, तो आपको पता है कि उसका क्या एंगल हो सकता है. या पुलिस रिफॉर्म्स, द गेटवे टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सपोज ऐसा कोई टॉपिक, तो आपको अच्छे से पता है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स, राइट फ्रॉम द हवलदार टू द आईपीएस ऑफिसर, क्या लेवल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का आर्किटेक्चर कैसा होता है, स्टेट में कैसा होता है, नेशनल लेवल पे पुलिस का आर्किटेक्चर कैसा होता है, आर्म्ड पुलिस कैसी होती है, कॉलोनियल टाइम में पुलिस कैसी थी, अभी कैसी है, डेवलप्ड कंट्रीज की पुलिस कैसी है, इंडियन पुलिस को हम स्कॉटलैंड यार्ड से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, या न्यूयॉर्क सिटी पुलिस से कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं, प्रिजन में क्या चैलेंजेस हैं, लॉज में क्या चैलेंजेस हैं, कोर्ट्स के साथ क्या चैलेंजेस हैं, विटनेस इंटरोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में कौन से रिफॉर्म्स चाहिए, आपने इन डेप्थ पढ़ रखा है, तब आप बहुत सारे नए आइडियाज इनकॉर्पोरेट कर पाओगे, which others will find it really difficult. So it's all depends upon your in-depth understanding of the topic, how much you have read about it. There is no escaping reading. हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मन में जो आया वो लिख दिया आपने. So novelty simply means that how many new ideas, concepts, thoughts, etc. you can introduce in the essay. So this is how you should select the topic. और 10 मिनट आपको लेना चाहिए. अब आपको 10 मिनट कम लग रहे होंगे, है ना, क्योंकि आपको हर टॉपिक के लिए करना है ये सब कुछ. अगर एक सेक्शन में आप जाते हो तो 5 मिनट मिले आपको, उसको 4 टॉपिक्स होंगे, उसमें से एक लेना है, तो चारों टॉपिक के लिए आपको ये सारी चीजें चेक करनी है. तो सबसे पहले तो आप फेमिलियरिटी देखोगे, फेमिलियरिटी मिल गई तो फिर आप नॉलेज देखोगे, नॉलेज में मिल रही है आपको. प्रोपेंसिटी में आप देख रहे हो कि मोस्ट यही लिखेंगे, तो आप थोड़ा सा कम फेमिलियर वाले पे भी लिख सकते हो, लेकिन नॉलेज में बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. अगर नॉलेज में बहुत गैप होगा तो फिर आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओ. ठीक है, दैट्स द सेकेंड